Welcome again, friends, to Sri Lanka series. And in this episode, we will move from Trincomalee to Sigiriya. जी हाँ, next stop Sigiriya. And it is almost 100 kilometers from Trincomalee. And हमने चेक किया है यहाँ से ट्रिप का प्राइस इट्स कमिंग ऑलमोस्ट 11,000 प्लस LKR by Uber or PickMe. But we chose local transport, so it costed us only 419 rupees. And this is the location where you have to get down by the bus to go to Sigiriya Lions Rock. और इस जगह का नाम है इना मैलुआ Sigiriya Road. Just for your information, Sigiriya is one of the World Heritage Site of UNESCO. And Lions Rock is 8th wonder of the world, so it is must see one. And some of the other attractions are Pidurangala Rock and Lions Paws जो कि है सेम जगह, and also Dambula Royal Cave Temple and Mineria National Park, and a post office from where for memories only you can send a postcard to yourself or to your loved ones. And यहाँ पर मिला हमें एक न्यू सिगिरिया कैफ़े जहाँ पर आपको मसाला चाय मिल सकती है. Not that good but still okay. So guys, this is the entry to the Pidurangala Way or the Sigiriya Lions Rock. चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे जाना है हमें एंट्री पे या फिर कहाँ से लेने हैं टिकट्स. जी हाँ, आपको यहाँ पर लायंस रॉक म्यूज़ियम एंड पिदुरांगला रॉक विज़िट करने के लिए कुछ फ़ीस चार्जेस देने पड़ेंगे. एंड जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर चारों तरफ वाटर बॉडी है और जंगल ही जंगल है और कुछ बोर्ड्स भी लगे हैं जहाँ पे लिखा है इट इज़ डेंजरस टू गो मोर अहेड. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है कवर्ड विद लीव्स एंड यहाँ पर कुछ वार्निंग बोर्ड्स भी लगे हैं जिन पे लिखा है रिफ्रेन फ्रॉम बेदिंग एज द क्रोकोडाइल्स गो अबाउट. सो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, सो प्लीज़ अवॉइड टेकिंग बाथ और गोइंग क्लोज. मैंने काफ़ी देर ट्राई किया देखने के लिए शायद कोई क्रोकोडाइल साइटिंग हो जाए, बट नथिंग वाज साइटेड. हाउएवर पास में ही एक बंदा वीडियो बना रहा था एंड ही वाज लाइक अरे वो देखो क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल. बट लेट मी टेल यू गाइज, इफ़ देयर इज़ अ क्रोकोडाइल the water will be moving for some time if the crocodile goes inside or moves out. However, warning signs are in place at many places by the local authority. So please do not try to go inside the water or near to the water as crocodiles come out also. Again we cited one more warning signboard, beware of crocodiles. So please stay away, keep clear. चलिए थोड़ी देर और देखते हैं पानी में इफ वी कैन साइट अ क्रोकोडाइल. सो आई कुड साइट नथिंग, बट चलिए चलते हैं एंट्री की तरफ एंड टिकट काउंटर की तरफ. सो दिस इज द डायरेक्शन साइनेज शोइंग कैफेटेरिया, म्यूजियम, Pidurangala and Sigiriya. Also, there are some instructions. Do not feed animal, garbage in bins, no plastic, no music, no partying and damaging monument is a punishable offense. यहाँ की एक हिस्ट्री है 1967 की जहाँ पर किसी ने पेंट स्प्लैश कर दिया था on the frescoes. So guys, to go to the Sigiriya Lion Rock, you will have to buy the ticket and also which covers the museum as well. And for foreigners and local, the ticket pricing is different. However, if you are coming from a SAARC country, the price goes to half. But सबसे important चीज़ है आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ रखना पड़ेगा. Then only they'll give you discount of 50%. नहीं तो discount is not there even if you have the digital copy of it. So guys, this is the entry और यहाँ पर 3 lanes हैं. One is for foreign tourists, second for local and third for tourist guides and helpers. And this is the entry board for the Lions Rock. Also यहाँ पर एक notice लगा है for damaging or doing scribbling on the monument, a fine or imprisonment or both. So this is the map of the location, how it goes and where is the citadel. So now the best part of it is, if we go by the written records, this is the site of King Kashyap's capital with his palace at the very top of the rock. And Sigiriya is where his pleasure house stood. Now, apart from the history books, many noted historians believe Sigiriya to have a connect with Ramayan's Ravan,
It is believed that the top was the site of Ravana's majestic palace made up of solid gold and which was crafted by Kuber, the god of wealth, around 50 centuries ago. And अगर आप देखेंगे तो this place has almost more than 1200 stairs, and that time it used to have lift for Ravan and his visitors to get to the top. अब आप सोचिए कि एक लिफ्ट जो कि करीब 50 सेंचुरी पहले थी, श्योर कुछ अलग ही रहा होगा. एंड वंस यू गो ऑन टॉप, रॉक के वेस्ट साइड में है पार्क जो कि होता था रॉयल लोगों के लिए, और काफ़ी सारे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं जिसमें कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम भी हैं जो कि आज भी काम कर रहे हैं. एंड ये था एक स्विमिंग पूल जिसमें पानी पूरा ऊपर तक भरा रहता था. अभी भी कुछ लेवल तक पानी इसमें देखा जा सकता है, और इसके लिए मेन एंट्रेंस पे 5 गेट थे जिसमें से वेस्टर्न गेट is thought to have been reserved for the royals. And now the name of this place is Lion's Paws. However, जो ये पंजे हैं वो लायन की तरह नहीं दिखते हैं बल्कि किसी रेप्टाइल या फिर किसी और क्रिएचर जैसे दिखते हैं. एंड ये है वन पीस थ्रोन. जी हाँ, थॉट टू बी कि ये रावण का सिंहासन होता था. और ये हैं कुछ पेंटिंग्स इनसाइड. एंड व्हाइल गोइंग अप, द वॉल ऑन द वन साइड इज मिरर वॉल. ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतनी शाइन होती थी कि whosoever is passing by could see his reflection at that time. However, आज की डेट में लोगों ने अपने नाम लिख दिए हैं which is not right again. And again, just for information, the top of the rock is approximately 180 meters from the plane or 600 feet. So आप सोच सकते हैं कितनी ऊंची लिफ्ट रही होगी और वो कैसे चलती होगी उस टाइम में. नाउ गाइस, इससे आगे की तरफ रास्ता जाता है पिदुरांगला रॉक की तरफ. एंड दिस इज़ अ कंप्लीट जंगल. एंड अगर आप वॉक करके जा रहे हैं, किसी व्हीकल से नहीं जा रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये डिस्टेंस और ये रास्ता कवर कर रहे हैं दिन में, ना कि शाम को, बिकॉज इट इज़ रियली रियली स्केरी. और वैसे भी ये था रावण का एरिया, सो गाइस इट हैज़ टू बी स्केरी. एंड गाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स और 30 to 35 minutes walk from Lion's Rock to Pidurangala, and it is all jungle area, nothing around. As you can see, मैंने आगे और पीछे भी आपको दिखाया है, और बीच में जाकर ये चेक पोस्ट आता है जहाँ से आपको लेफ्ट जाना है पिदुरांगला के लिए. एंड ऑन द राइट साइड दिस वॉज द सिगिरिया रॉक. एज यू कैन सी द स्टेयरकेसेस वेयर पीपल आर क्लाइंबिंग. एंड सिगिरिया पे लायंस रॉक पे काफ़ी भीड़ रहती है, सो स्पेशली ऑन वीकेंड्स ट्राई नॉट टू गो, नहीं तो वॉक भी बहुत धीरे करना पड़ेगा. सो गाइस, एट लास्ट हम पहुंच गए हैं पिदुरांगला रॉक के जस्ट एंट्री पर. एंड दिस इज़ द रोड लीडिंग टू पिदुरांगला रॉक या फिर रॉयल टेम्पल ऑल्सो. दिस इज़ द पिदुरांगला रॉयल केव टेम्पल. एंड यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा, और दिस इज़ द एंट्री टू द टेम्पल और द रॉक ऑल्सो. एंड यहाँ पर कुछ कैमरास का भी काम चल रहा है. CCTV इंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस. ऑल्सो गाइज, एज द वे टू पिदुरांगला रॉक गोज थ्रू द टेम्पल, सो आपको प्रॉपर अटायर में होना ज़रूरी है. इन केस आप नहीं हैं, देन यू कैन टेक क्लोथ्स फ्रॉम द ticket counter and return them once you have passed the temple area. And the entry ticket for Pidurangala temple and rock is 1000 LKR only. And यहाँ पर as compared to Lion's Rock कम लोग आते हैं, as it is little bit inside. Also यहाँ पर proper stairs नहीं है चढ़ने के लिए. It is completely mountain area and also little bit difficult as compared to the Lion's Rock. So चलिए देखते हैं आगे कैसा है ये. एंड दिस वॉज द एंट्री टिकट टू पिदुरांगला केव एंड रॉक टेम्पल विच कॉस्टेड अस 1000 LKR. एंड जस्ट एट द एंट्री देर इज अ बेल फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स एंड दिस इज द टेम्पल. एंड द वे राइट साइड गोज अप टू द रॉक. यहाँ से क्लाइंब चालू होता है आपका, विच इज़ ऑलमोस्ट 35 to 40 minutes नॉन स्टॉप. अगर आप रुक रहे हैं देन इट वुड टेक 1 hour और मोर. एंड द
climb is little bit difficult as सारी की सारी सीढ़ियाँ पुरानी हैं, टूटी हुई हैं and avoid going on a rainy day as it becomes slippery. Also avoid going during the dark times as there is no light and the way is also little bit difficult. Initially तो आपको कुछ सीढ़ियाँ मिल जाएंगी but ऊपर चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी and then you just have to climb the rock or the mountain you will see in the upcoming video. Also, the total time to climb till the mountain top will be minimum 30 minutes to 45 minutes depending upon your speed. And one advice, please make sure कि आप normal कपड़े डाल के जाएं and you are not wearing tight clothes or jeans because it will be difficult to climb up the mountain. Also wear good footwear for comfort and easy climbing. As you can see in the video, it is getting difficult slowly to climb up and there are hardly any stairs or proper way. And guys, here just before reaching the top of the mountain, here we can see the Buddhaji statue in Parinirvana pose. And just for your information, Parinirvana is when Buddha Bhagwan wished to depart from this life and he put his head up on his right hand, and some people call it as sleeping position also. चलिए let's go up and climb to the top of the mountain, and while coming down we will see again the area near Buddha Bhagwan's statue. And guys, this is the last stretch to the top of the mountain or Pidurangala rock, and this is one of the most difficult part. This is the last climb of the mountain, and here we are on top of the Pidurangala rock, and आपको सामने दिख रहा है सिगिरिया लायंस रॉक, और चारों तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी. अगर जन्नत है तो यहाँ है श्रीलंका में.
एंड नाउ वाइल क्लाइंबिंग डाउन हम लोग वापस आ गए हैं जहाँ पर बुद्ध भगवान की स्टैचू है परी निर्वाणा पोजीशन में। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं एंड एज पर गाइड दीज आर फॉर प्रेयर, या फिर ये उस टाइम में प्रेयर के लिए छोटे छोटे रूम्स बने थे। And here in this area, there are notice boards saying wild elephants roaming area at dusk, and also it is no drone zone. And guys, if you can see, this is the Sigiriya rock, and यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है because it is Sunday. All people are climbing up. And here we found a couple trying to be Tarzan and Zane of the jungle. एंड आई डोंट नो इन्हें क्या जोश चढ़ा कि ये एक ट्री पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे एंड लकीली नथिंग हैपेंड एंड दे केम डाउन। ऑल्सो गाइज यू कैन टेक द लकी विलेज सफारी हेयर, जिसमें वो आपको विलेज का एक राउंड दिलाते हैं। एंड नाउ हम लोग आ गए हैं दाम्बुला में। जी हाँ, सिगिरिया लायंस रॉक से दाम्बुला का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने के लिए आप या तो पिकमी या फिर टैक्सी या फिर आप बस से भी जा सकते हैं। आपको यहाँ जाने के लिए लॉयंस रॉक से पहले सिगिरिया टू दाम्बुला की बस लेनी पड़ेगी और दाम्बुला पहुँच के आपको रॉक टेम्पल के लिए बस ईजिली मिल जाएगी। और यहाँ पर सेम एंट्री के बाद आपको दोनों टेम्पल्स जाने के लिए रास्ता मिलेगा। द वन ऑन द राइट साइड गोज़ टू गोल्डन टेम्पल, जिसकी आप बुद्ध भगवान की स्टैचू अभी देख सकते हैं, एंड द वन ऑन द लेफ्ट साइड गोज़ टू रॉक टेम्पल। एंड गोल्डन टेम्पल पे पहुंचने के लिए आपको इन बिटवीन 60 to 70 स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ेंगी। सो वी चोज फर्स्ट टू गो टू golden temple instead of rock temple, as rock temple will be approximately more than 350 stairs to go up, and here it is only 5 minutes. Also to visit golden temple आपको कोई भी एंट्री टिकट नहीं देना पड़ता है, पर रॉक टेम्पल के लिए आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है। और उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊंगा, पर चलिए पहले चलते हैं गोल्डन टेम्पल। और जस्ट गोल्डन टेम्पल की एंट्री से पहले एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, जिसमें से आपको होके निकलना पड़ता है जस्ट टू रीच द गोल्डन टेम्पल। एंड गोल्डन टेम्पल से नीचे उतरने के लिए दूसरी तरफ सीढ़ियाँ बनी हैं, और जहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क की स्टैचूज़ बनी हैं जो कि बुद्ध भगवान की स्टैचू की तरफ जा रहे हैं। एंड सब मॉन्क्स के हाथ में कुछ ना कुछ है जो कि वो बुद्ध भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ से नीचे उतरने के बाद आई विल ट्राई टू शो ऑल द बुद्धिस्ट मॉन्क स्टैचूज टू यू। So guys, once done with the golden temple, now we'll climb up for the rock temple. And जैसा कि आप देख सकते हैं अभी वीडियो में, दोनों टेम्पल्स की एंट्री साइडवेज है,
राइट साइड में गोल्डन है एंड लेफ्ट साइड में रॉक टेम्पल है। गाइस यहाँ पर बोर्ड लगा है एंट्रेंस टू द रॉक टेम्पल। हाउएवर अगर आपने एंट्री टिकट नहीं लिया है तो आपको आधे रास्ते चढ़ के फिर नीचे उतरना पड़ेगा टू द ट्रस्टी ऑफिस, जहाँ से आपको एंट्रेंस टिकट मिलेगा और आपके लिए एक्स्ट्रा चढ़ाई हो जाएगी। सो अगर आप रॉक टेम्पल जाने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप दूसरी साइड से उसको क्लाइंब करें, ऊपर चढ़ें, ताकि आप पहले ही अपना एंट्री टिकट ले सकें एंड यू डोंट हैव टू क्लाइंब डाउन अगेन फॉर द एंट्री टिकट। और रॉक टेम्पल पे पहुंचने के लिए आपको करीब 360 सीढ़ियाँ और कुछ थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम। And guys, the area for this temple is more than 2100 square meters and यहाँ पर more than 155 statues हैं बुद्ध भगवान की। And trust me, the temple is very beautiful, neat and clean. And if you are in Sri Lanka, then you must visit this temple as it is one of the best in the world. आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू टू वॉच श्रीलंका सीरीज। थैंक यू।